Now today, previously we learned some of the things of partial differential equation, okay, and Euler's theorem, modified Euler's theorem, and the examples related to it, okay. Now the next topic is which variable treated as constant. Now what it means, समझते हैं पहले इसको, what it means. If I write del u by del x और ब्रैकेट के बारे में y, in the suffix it is y, so what it means, it is partial derivative of x, keep y as constant. So here in the suffix it is y, so keep it as constant and do the partial derivative of u with respect to x, okay. Del u by del x means partial derivative of u with respect to x and keep y as a constant, okay. So this is the meaning of which variable I treated as constant. So here I consider the variable y as a constant here, okay. So let us take one example. If u is equals to lx plus my, v is equals to mx minus ly, prove that del u by del x y del x by del u v, this equals to L square upon L square plus m square and del y by del v x del v by del y u L square plus m square upon L square. Solution. Now please pay your attention here. U is given, v is given. Now first of all you try to understand the meaning of this. Del u by del x suffix में y है, so u का partial derivative with respect to x, keep y is constant. Del x by del u v. अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, इसका मीनिंग क्या होता है. Here not that, अगर मैं ऐसे लिख रहा हूँ del x by del u सफिक्स में v, तो इसका मीनिंग क्या है. What it means? It means x should be a function of u, x should be a function of u and v, then partial derivative of x with respect to u and keep v is constant. तो इसका मीनिंग क्या हुआ, पहले x को आपको किसके रिलेशन में लाना पड़ेगा, x शुड बी अ फंक्शन ऑफ u एंड v, ठीक है. तो ये रिलेशन फर्स्ट यू हैव टू मेक द रिलेशन बिटवीन x u एंड v and then you are doing the partial derivative of x with respect to u where v is a constant, okay. इसका मीनिंग क्या हुआ, del y by del v सफिक्स में x, तो इसका मीनिंग क्या हुआ, रिलेशन बिटवीन y v and x, then you are doing partial derivative of y with respect to v, keep x is constant, okay. del v del y सफिक्स में u है, तो इसका मीनिंग क्या हुआ, you first of all you make the relation between v, y and u and then you are doing the partial differentiation with respect to y where u is a constant, okay. अब यहाँ पर मुझे ध्यान दीजिए, ये रिलेशन मेरे पास है, ये वाला रिलेशन मेरे पास है, यस और नो, u x y का रिलेशन है मेरे पास. Yes, sir. Yes, here I have this relation, I already have this relation u x and y, okay. So this is simple to find out, del u by del x y कितना आएगा ये, del u by del x, so it is L, keep y is constant, तो इसका डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, okay. So simply it is L.
नाउ नेक्स्ट इज एक्स यू वी। ओके, एक्स का रिलेशन विथ रिस्पेक्ट टू यू एंड वी, तो एक्स यू वी चाहिए मुझे। तो यहाँ पे मुझे क्या एलिमिनेट करना पड़ेगा, किसको एलिमिनेट करना पड़ेगा, वाई को एलिमिनेट करना पड़ेगा, यस और नो। ये दोनों रिलेशन में से अगर मुझे एक्स यू वी का रिलेशन चाहिए, एक्स यू एंड वी, तो मुझे किसको एलिमिनेट करना पड़ेगा, वाई को एलिमिनेट करना पड़ेगा। तो अगर वाई को एलिमिनेट करना है तो हमारे पास रिलेशन कौन सा है, u इज इक्वल्स टू एल एक्स प्लस एम वाई एंड v इज इक्वल्स टू एम एक्स माइनस एल वाई। अब इसको मुझे एलिमिनेट करना है, सो व्हाट आई हैव टू डू हियर, इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, l से, और इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, m से। तो ये क्या होगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा, एल यू, यहाँ पे हो जाएगा एल स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगा एल, यहाँ पे हो जाएगा एम बी, यहाँ पे हो जाएगा एम स्क्वायर, और यहाँ पे हो जाएगा एम। सो दिस वन इज कैंसल आउट, सो व्हाट यू आर गेटिंग हियर, एल यू प्लस एम बी, एक्स को बाहर निकालते हैं, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर। सो दिस इम्प्लाइज, अब x चाहिए मुझे, x को सब्जेक्ट बनाओ, सो x इज इक्वल्स टू एल यू प्लस एम वी अपॉन एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर। सबको समझ में आ रहा है, यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. Is it clear to everyone? Okay. Now what I have to find out here, del x by del u where v is constant. So del x by del u where v is constant, तो इसका कितना आएगा, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, टू गेट हियर, del x by del u where v is constant, तो ये कितना आएगा, b कांस्टेंट लेना है, डेल एक्स बाय डेल यू करना है, सो इट इज एल अपॉन एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर। बिकॉज v कांस्टेंट है, l कांस्टेंट है, m कांस्टेंट है, तो ये पूरा क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। तो उसका डेरिवेटिव कितना होगा विद रिस्पेक्ट टू, वो कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। सो व्हाट यू आर गेटिंग, डेल एक्स बाय डेल यू सफिक्स में v, दैट इज इक्वल्स टू एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर। इज इट क्लियर टू एवरीवन? Yes, sir. ओके, બધાને ખ્યાલ આવે છે? ओके, सो सिमिलरली यू हैव टू फाइंड आउट डेल वाई बाय डेल वी। तो यहाँ पे मुझे रिलेशन पहले चाहिए वाई वी एक्स, तो किसको एलिमिनेट करना पड़ेगा, u को एलिमिनेट मुझे करना पड़ेगा, राइट। तो u को एलिमिनेट मुझे करना है, पहले देख लेते हैं वाई वी एक्स का रिलेशन है मेरे पास, है मेरे पास ऑलरेडी, वाई वी और एक्स ये ऑलरेडी मेरे पास है रिलेशन, ठीक है, ये मेरे पास रिलेशन है। अब यहाँ पे दूसरा कौन सा रिलेशन है, डेल वी बाई डेल वाई एट यू, सो वी वाई यू, तो किसको एलिमिनेट करना पड़ेगा, एक्स को एलिमिनेट करना पड़ेगा। तो फिर से यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई करोगे आप, m से, और यहाँ पे l से, एंड देन यू आर सब्ट्रैक्टिंग इट। ओके, सो नाउ क्या फाइंड आउट करते हैं, डेल वाई बाय डेल वी एक्स, तो कितना आएगा, ये रहा रिलेशन मेरे पास, b is equals to mx minus, I have this relation, v is equals to lx minus my। ओके, तो चलिए विथ रिस्पेक्ट टू v करते हैं, तो 1 हो गया, इसका डेरिवेटिव कितना आएगा, x इज कांस्टेंट, सो दिस बिकम्स 0 माइनस m, सर ये एम हो एक्स और एल वाई है, गया एम एक्स माइनस एल वाई है। माइनस एल बाई mx माइनस कर दे, whether we are going to check this becomes l square upon l square plus m square or not, right? ओके, तो पहले ये चेक कर लेते हैं, डेल यू बाई डेल एक्स एट वाई कितना मिला था, m, डेल एक्स बाई डेल यू एट वी वो कितना मिला मुझे, एल अपॉन एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर, दोनों का मल्टीप्लीकेशन करोगे आपको कितना मिल जाएगा, एल स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर। तो ये डन हो गया। अभी इसकी बात करते हैं, डेल वी बाई डेल वाई एट यू, वो फाइंड आउट करते हैं, डेल वी बाई डेल वाई एट यू। तो हमारे पास पहले रिलेशन कौन सा है, u इज इक्वल्स टू एल एक्स प्लस एम वाई।
v is equals to ये v बाई u का, तो किसको एलिमिनेट करना पड़ेगा, x को एलिमिनेट करना पड़ेगा। तो इसको m से मल्टीप्लाई करते हैं, इसको l से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हो गया mu, ये हो जाएगा m स्क्वायर, एल वी एल एल स्क्वायर, ठीक है, माइनस प्लस माइनस, तो ये निकल गया। सो एम यू माइनस एल वी इज इक्वल्स टू, वाई कॉमन निकलते हैं, एम स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। सो दिस इम्प्लाइज y is equals to mu minus lv upon l square plus m square। ओके, अब किसका डेरिवेटिव u को सब्जेक्ट बनाना है, राइट, यहाँ पर किसको सब्जेक्ट बनाना है, u को सब्जेक्ट बनाना है, तो ये लिखने की जरूरत नहीं थी। अब डायरेक्ट अगर डेरिवेटिव आप करोगे, u को सब्जेक्ट बना लेते हैं। सो u इज इक्वल्स टू एल वी प्लस वाई एम स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर अपॉन m, ऐसा मिलेगा हमको, राइट। अब इसका आंसर कितना आएगा, जस्ट अ मिनट, डेल वी बाई डेल वाई है ना, यहाँ पे मैंने किसको बनाया, ओके, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, v को सब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, राइट। सो एम यू माइनस वाई एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर अपॉन एल, ठीक है। नाउ लुक एट हियर, प्लीज प्योर अटेंशन हियर। नाउ डेरिवेटिव ऑफ, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ v विथ रिस्पेक्ट टू y, क्या फाइंड आउट करना है, डेल v बाय डेल y वेयर u इज कांस्टेंट, तो ये पूरा कांस्टेंट हो जाएगा, तो वो जीरो हो जाएगा, माइनस विथ रिस्पेक्ट टू y करना है, तो ये कितना हो जाएगा, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर अपॉन एल। ओके, अब दोनों का मल्टीप्लीकेशन करते हैं, दोनों का मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो कितना आएगा, माइनस वन अपॉन एल और माइनस एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर अपॉन एल, दोनों का मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो कितना आएगा, एल स्क्वायर माइनस माइनस प्लस एल स्क्वायर अपॉन एम, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर अपॉन एल इंटू एल, इट बिकम्स एल स्क्वायर। सो एंड इट इज प्रूव्ड, वो हो गया एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर। इज इट क्लियर टू एवरीवन, समझ में आ रहा है सबको, यस और नो? સર ये એમ આમ એમ mu ઇઝ ઇક્વલ ટુ mls વાળું જે ઇક્વેશન બનાવ્યું કેવી રીતે કર્યું, कहो स्टेप। આ જે ઇક્વેશન બનાવ્યા ને બે, हाँ, એ કઈ રીતે બનાવે, क्या इक्वेशन में बनाया, આ બે આ ઇક્વેશન બે તો બેટા આપેલા છે, આ બે ઇક્વેશન તો આપેલા જ છે। એ નહીં સર, આ છે ને lu ઇઝ ઇક્વલ ટુ નીચે વાળું lu ઇઝ ઇક્વલ ટુ l સ્ક્વેર x, જેના પરથી આપણે આ v અને v ફાઇન્ડ કર્યો ને, हाँ, એ तो બે जो અહીંયા સમજી લો, હવે આ મારી પહેલા જોઈ લો કે આ રિલેશન મારી પાસે મને આ ઇક્વેશન આપેલું છે, કોનું રિલેશન જોઈએ, યુ એક્સ અને વાય નું, તો યુ એક્સ વાય નું રિલેશન છે મારી પાસે, યસ ઓર નો, આ છે મારી યસ પાસે યુ એક્સ એન્ડ વાય, ઓકે, એટલે આનું તો ડન થઈ ગયું। હવે અહીંયા જુઓ, હવે કોનું રિલેશન જોઈએ છે મારે, એક્સ યુ અને વી નું રિલેશન જોઈએ છે, તો હવે આ બે ઇક્વેશન માંથી કોઈ પણ મારી પાસે ઇક્વેશન નથી રેડીમેડ, જુઓ તમે, ઓકે, તો પહેલા આપણે આ રિલેશન બનાવવું પડશે, એક્સ યુ અને વી નું રિલેશન પહેલા બનાવવું પડશે। હવે એક્સ યુ વી નું રિલેશન બનાવવું હોય તો મારે આ બંનેમાંથી કોને એલિમિનેટ કરવા પડે, વાય ને એલિમિનેટ કરવો પડે, યસ સર, હા, તો એ જ આપણે કર્યું છે, જુઓ આ ઇક્વેશન કન્સિડર કર્યું, u ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ lx પ્લસ my અને v ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ mx માઇનસ ly, તો આને મારે l થી મલ્ટીપ્લાય કરવો પડશે, આને m થી મલ્ટીપ્લાય કરવો ઓકે પડશે। સર સમજી, હવે તમે જેવું મલ્ટીપ્લાય કરશો, બરાબર છે, એટલે આ કેન્સલ આઉટ થઈ અને તમને મળશે રિલેશન। ઓકે इज इट क्लियर टू एवरीवन, यस और नो? यस सर। सबको समझ में आ रहा है? सो दिस इज द टॉपिक विच वेरिएबल ट्रीटेड एज कांस्टेंट, એટલે જ્યારે પણ આવો એક્ઝામ્પલ પૂછાય તો આ ખાસ ધ્યાન રાખો, ઓકે। નાઉ composite function, now the next topic is composite function। Now what is composite function? Definition: if u is a function of xy where x is a function of t and y is also a function of, let us say, psi t, then
u is called composite function of single variable t. सिंगल वेरिएबल टी। अब आना बराबर समझो, u वो किसका फंक्शन है? लुक एट द डायग्राम हियर, इट इज अ फंक्शन ऑफ x and y. Now x is a function of t and y is also a function of t, but it is of the single variable. Okay, so finally you can say that u is a function of t. Okay, so there is a bridge between u and t, it is x and y. Okay, u અને t ની વચ્ચે બ્રિજ છે. ओके, तो दिस इज नोन टू बी अ कॉम्पोजिट फंक्शन. तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि u वो किसका फंक्शन है? एक्स वाई का फंक्शन है, और एक्स वाई वो भी किसका फंक्शन है? लेट अस से सिंगल वेरिएबल t. तो x એ t નું ફંક્શન છે અને y એ પણ t નું ફંક્શન છે. તો ફાઇનલી u એ કોનું ફંક્શન થશે? t નું. નાઉ હિયર ધ ક્વેશ્ચન ઇઝ આઈ વોન્ટ ટુ ફાઇન્ડ આઉટ ધ ટોટલ डेरिवेटिव ऑफ u विथ रिस्पेक्ट टू t. अब मुझे क्या फाइंड आउट करना है? u का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू t फाइंड आउट करना है, राइट? तो उसको फाइंड आउट करने का तरीका क्या है? लुक एट हियर, कैसे इसको टोटल डिफरेंशिएशन भी बोलते हैं. कैसे फाइंड आउट करेंगे? अब देखो u फाइनली किसका फंक्शन हो गया? u इज अ फंक्शन ऑफ t. तो सिंगल वेरिएबल है, तो यहाँ पे ध्यान देना, सिंगल वेरिएबल है, सिंगल वेरिएबल होगा तो यहाँ पे d आएगा. ओके, ऑर्डिनरी वाला आएगा. और मोर देन वन वेरिएबल होगा, more than one variable. If your u means if your function is more than one variable, तो क्या आएगा? del आएगा. ओके, अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, मुझे किसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है? आई वांट टू फाइंड आउट द टोटल डेरिवेटिव ऑफ u विथ रिस्पेक्ट टू t. लेकिन u सिंपली t का फंक्शन है, यहाँ पे दोनों में t है, मीन्स एक ही वेरिएबल है. तो उसको कैसे डिनोट करोगे? तो यहाँ पे d अप्लाई करना पड़ेगा, du बाई dt. अब टोटल डेरिवेटिव में फाइंड आउट कर रहा हूँ. क्या फाइंड आउट कर रहा हूँ मैं? टोटल डेरिवेटिव. ठीक है, अब टोटल डेरिवेटिव मुझे फाइंड आउट करना है. सो डी यू बाई डी टी. अब इसको कैसे डिफाइन करना है? प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस. डी यू बाई डी टी मुझे फाइंड आउट करना है. नाउ यू इज अ फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई. ओके, तो पहले क्या करना पड़ेगा? अब यू इज अ फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल. अब मैंने क्या लिखा है कि मोर देन वन वेरिएबल है, तो क्या कौन सा सिंबल आएगा? पार्शियल डिफरेंशिएशन आएगा. दिस इज अ सिंबल ऑफ पार्शियल डेरिवेटिव, दिस इज अ सिंबल ऑफ ऑर्डिनरी डेरिवेटिव. ऑर्डिनरी में सिंगल वेरिएबल आता है, पार्शियल के अंदर मोर देन वन वेरिएबल आता है. ठीक है, तो यू इट इज अ फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल एक्स एंड वाई. यस और नो? u is a function of two variable x and y. तो क्या आएगा? del u by del x into, अब यहाँ पे x is a function of t, सिंगल वेरिएबल है, तो वो कितना हो जाएगा? dx by dt. प्लस फाइनली तो मुझे विथ रिस्पेक्ट टू t करना है. उसी तरीके से क्या आएगा? del u by del y into dy by dt. दिस इज नोन टू बी अ टोटल डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ u विथ रिस्पेक्ट टू t. ओके, और दिस इज नोन टू बी अ टोटल डेरिवेटिव ऑफ u विथ रिस्पेक्ट टू t. इसको क्या बोलते हैं? दूसरे वर्ड में बोला जाए तो टोटल डिफरेंशियल कोएफिशिएंट. du by dt ने શું કહેવાય? ટોટલ ડિફરન્શિયલ કોએફિશિયન્ટ કિસકા? ऑफ u विथ रिस्पेक्ट टू t. समझ में आ गया सबको? तो ये आपको कैसे लिखना है? फर्स्ट यू हैव टू ड्रॉ द डायग्राम. आपको क्या करना है? फर्स्ट यू हैव टू ड्रॉ द डायग्राम एंड देन राइट डाउन दिस. पहला डायग्राम ड्रॉ करजो અને પછી આના પરથી આ લખવાનું છે. ओके, अनदर डेफिनेशन, इसकी डेफिनेशन है लेकिन अलग तरीके से लेते हैं इसको. इफ u इज अ फंक्शन ऑफ लेट अस से x एंड y, x is a function of let us say r and s and y is also a function of r and s. तो ये मैंने डायग्राम ड्रॉ कर दिया. अब मुझे टोटल डेरिवेटिव लिखवाओ, क्या होगा? अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, क्या होगा इसमें? अब u किसका होगा? u का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू r भी हो सकता है और s भी हो सकता है. ठीक है, तो पहले मुझे क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा? du बाई dr आएगा या फिर del u बाई del r आएगा? del u by अब del क्या r. आएगा? यस, del u बाई del r. del u बाई del r लिखवाओ, क्या होगा? अब u इज अ फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल x एंड y, तो क्या आएगा यहाँ पे? del u बाई
del x, yes or no? Yes, Yes, sir. try to give the reply Yes, so sir. I can yes, તમને લોકોને Yes, ખ્યાલ sir. આવે છે કે નહીં ખબર પડે. બરાબર છે. del u by del r અને del u by del s બંને ફાઇન્ડ આઉટ થશે. ઓકે, હવે હવે અહીંયા ધ્યાન આપો. મારે del u by del r કરવું હોય તો r એ x માં બી છે અને r એ y માં બી છે. ઓકે, તો પહેલા શું થશે? u ઇઝ અ ફંક્શન ઓફ x and y, સો u ઇઝ અ ફંક્શન ઓફ ટુ વેરિયેબલ x અને y બે જોઈન્ટ થયેલા છે u ની જોડે, એટલે શું આવશે? del આવશે, del u by del x. હવે x ઇટ ઇઝ ઓલ્સો અ ફંક્શન ઓફ ટુ વેરિયેબલ r and s, તો અહીંયા શું થશે? બોલો જી. del x by del વિથ r રિસ્પેક્ટ del r, del x by શું થશે? del r પ્લસ હવે r પાછો અહીંયા y માં y ની સાથે પણ એટેચ છે, તો શું આવશે? del u by del y into del y by del r. क्लियर? समझ में आ गया सबको? yes sir Yes, sir. ओके, नाउ सिमिलरली यस, सिमिलरली del u by del s भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं. u r और s दोनों है, ठीक है. u का रिलेशन फाइनली u का रिलेशन r और s के साथ में, ठीक है. तो अब u का तो विथ रिस्पेक्ट टू आप हमने टोटल डेरिवेटिव फाइंड कर दिया, अब u का विथ रिस्पेक्ट टू x फाइंड करना है, तो क्या होगा? बोलो, बताओ मुझे, कैसे लिखूंगा मैं? यस, del del u u by by del x into del x by del s del x by del s. s એ કોની સાથે plus જોઈન્ટ થયેલો છે? x જોડે બી છે અને y જોડે બી છે, પ્લસ del u by શું આવશે? del y del y into del y by del s. રેડી? ઇઝ ઇટ ક્લિયર ટુ એવરીવન? તો આ સિંગલ વેરિયેબલ માટે થયું. હવે प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन द, कोई डिफरेंस एज सच ऐसा कोई डिफरेंस नहीं है, लेकिन अब कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि सर यहाँ पे आपने du by dt क्यों लिखा है, क्योंकि u का फाइनली इट इज अ फंक्शन ऑफ सिंगल वेरिएबल t, दोनों में t है. और यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हो रहा है? u फाइनली इट इज अ फंक्शन ऑफ r एंड s, तो वो u के साथ में दो वेरिएबल अटैच है, u इज अ फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल, इसलिए यहाँ पे del आया. ओके, so this is all about composite function. Now implicit function, जैसे composite है उसी तरीके से implicit function. Now if the equation of the form, कोई पण equation if it is of this form, f of xy is equals to c, f of xy is equals to c, then it is known to be a, then it is known as implicit function. Okay, if any equation of this form f of xy equals to c, then it is known to be a implicit function. Now what is the speciality of આ રીતે જોવા જઈએ તો તમને બધા જ ફંક્શન કેવા લાગે કે સર બધા જ ફંક્શન implicit function દેખાય? c constant છે તમારો, ઓકે, where c is constant. તો what is the speciality of this? यहाँ पे ध्यान देना, f is a function of two variable x and y. ओके, હવે આની સ્પેશિયાલિટી શું છે એ ધ્યાન આપો. x, I can say that x is a function of x, yes or no? yes sir Yes or no? Now what is the special here? Why it is also a function of x here? Now it is known to be an implicit function. So please remember, this diagram is very important. So remember this, f is a function of xy. Okay, now x, we can say that x is a function of x, but here y is also a function of x, then it is known to be a implicit function. આમ તો જોવા જઈએ તો આવા ફોર્મમાં હોય બધા જ implicit function જ કહેવાય. Okay, but if I want to find out dy by dx, dy by dx मारे जो फाइंड आउट करવું है, और यहाँ पे मैंने क्या लिखा है? ओके, यहाँ पे मैंने f यहाँ पे कंसीडर किया है, u नहीं किया. नाउ आई वांट टू फाइंड आउट df by dx. ચાલો શું લખીશું આપણે? શું આવશે डेरिवेटिव? આ डायग्राम प्रति મને કહો છો, ये डायग्राम आपके पास है, इससे यहाँ पे बोलो क्या होगा? del f by with respect to x है, so del f by del x, yes or no? into 1 into 1, yes, dx upon dx. क्योंकि अब मैंने d यहाँ पे क्यों लिखा? क्योंकि x
it is related to one variable. Okay, plus del f by del y into क्या आएगा, dy by dx. ओके, नाउ अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे इन लोगों ने आपको जो फॉर्मूला दी है, मैं आई वांट टू ट्राई टू प्रूव दिस माइनस एफ एक्स अपॉन एफ वाई, ये इसके एग्जांपल पूछे जाते हैं कि इम्प्लिसिट फंक्शन है तो dy बाई डी एक्स की व्हाट इज द वैल्यू ऑफ dy बाई डी एक्स, इट इज गिवन बाय माइनस एफ एक्स अपॉन एफ वाई ना, आई वांट टू प्रूव दिस, ये मैं अभी प्रूव कर रहा हूँ कि ये कैसे आ रहा है. ठीक है, आपको ये याद रखना है दिस वन कि dy बाई डी एक्स क्या है, माइनस एफ एक्स अपॉन एफ वाई. सेकंड ऑर्डर में जो है वो आपके सिलेबस में नहीं है. ठीक है, तो वो करने की जरूरत नहीं. अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये क्या आ गया, डेल एफ बाई डेल एक्स प्लस डेल एफ बाई डेल वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स. अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, एफ एक्स वाई इज इक्वल टू सी, तो उसका डेरिवेटिव, अगर फंक्शन आपका कांस्टेंट है तो उसका डेरिवेटिव कितना आ जाएगा, 0. यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. ઓકે, તો હવે અહીંથી તમે dy બાય dx ના સબ્જેક્ટ બનાવો તો શું થશે, માઇનસ આ શું થઈ જશે fx અને આ શું થશે તમારું fy. Yes, हो sir. गया प्रूफ, dy बाय dx इक्वल्स टू माइनस fx अपॉन fy. ओके, पर તમારે ફક્ત ખાલી याद रखવાનું છે, इम्प्लिसिट फंक्शन है तो ये डायग्राम आपको याद रखना है, कैसे उसको टोटल डेरिवेटिव में लिखना है, और वहां पे dy बाई डी एक्स अगर डायरेक्टली फाइंड आउट करना है, dy बाई डी एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो वो आपको डायरेक्टली फाइंड आउट करनी है बाय यूजिंग दिस माइनस एफ एक्स अपॉन एफ वाई. वेर एफ वाई बट ऑब्वियस, कोई पूछे तो आपको समझ में आ जाना चाहिए, एफ वाई मस्ट बी नॉन जीरो, एफ वाई नॉन जीरो होना चाहिए वरना फाइंड नहीं होगा ये. ओके, एग्जाम्पल लेते हैं अभी, इम्प्लिसिट फंक्शन, फिर दोनों का कॉम्बिनेशन लेंगे, कॉम्पोजिट इम्प्लिसिट दोनों में लेंगे. इफ u इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, x इक्वल्स टू 80 स्क्वायर, y इक्वल्स टू 280, फाइंड du. ओके, तो चलिए पहले डायग्राम ड्रॉ करते हैं. u इज अ फंक्शन ऑफ एक्स वाई, जस्ट अ मिनट. Okay, u is a function of x and y, x is a function of t, and y is also a function of t, right? Okay, now what I want to find out, du by dt. चलो du by dt find out करते हैं. Okay, du by dt from the diagram, what should I write here? How to make this? Del u by del x into dx by dt plus del u by del y इंटू डी वाई बाई डी टी. तो अब फाइंड करते हैं डेल यू बाई डेल एक्स. डेल यू बाई डेल एक्स कितना होगा यहाँ पे 2x, डी एक्स बाई डी टी कितना होगा यहाँ पे 280 प्लस डेल यू बाई डेल वाई कितना होगा 2y, एंड डी वाई बाई डी टी आपका कितना होगा 2a.
तो ये टोटल कितना हो गया 4axt प्लस ओके 4ay. So finally you have to write down this. तो आंसर कितना आएगा सर स्क्रीन यहाँ पे उल्टी क्या दिख लिखा रही है। होगा हेलो सर। 4axt. Yes. Hello, sir. सर स्क्रीन उल्टी है। Now it's okay. Yes, sir. यस सर। So 4axt plus y. Now replace the value of x and y here. x की वैल्यू कितनी है 80 स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 80 क्यूब और y की वैल्यू आपकी 280. तो यहाँ से आप क्या निकाल सकते हो 4a स्क्वायर, t भी निकाल सकते हो बार, तो ये आ गया t स्क्वायर प्लस 2. ओके, सो दिस इज योर फाइनल आंसर. दिस इज योर du by dt. तो इस तरीके से हमको एग्जाम्पल सॉल्व करना है. दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं. If u is equals to sin inverse x minus y, x equals to 3t, y is equals to 4t cube, show that du by dt is equals to 3 upon. I think ये आपको कचोट में मिल जाएगा, ये सॉल्व एग्जाम्पल है, कचोट के अंदर आपको मिल जाएगा. ठीक है, यहाँ पे भी ऐसा ही करना है. u is a function of x and y, x is a function of t, y is a function of t. just try to find out du by dt. आपको ये मिलेगा. और ये कचोट में आई थिंक सॉल्व एग्जांपल है ये वाला, तो अच्छा वाला एग्जांपल ले लेते हैं. ये सिंगल वेरिएबल में है ना सब, ये भी सिंगल वेरिएबल में है. Okay. If z is a function of xy to e raised to u plus e raised to minus v and y is equals to e raised to minus u minus e raised to v, prove that del z by del u minus del z by del u is equals to x del z by del x minus y del z by del y. पहले तो कौन कौन सी क्वांटिटी फाइंड आउट करनी है वो देख लेते हैं. देखो यहाँ पर पहले डायग्राम ड्रॉ कर देते हैं. z is a function of xy. okay, x is a function of, yes, x is a function of u and v, UNV u and y is a function of once again u and v. अब ये देखिए, लुक एट ये, जो मुझे प्रूव करना है लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड वो देख लीजिए. ओके, अब लुक एट द राइट हैंड साइड. मैं लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करूं या राइट हैंड साइड से स्टार्ट करूं वो पहले देख लो. यहाँ पे क्या है डेल जेड बाय डेल एक्स है, तो आपको कुछ मिलेगा डेल जेड बाय डेल एक्स, यहाँ से कुछ मिलने वाला है? नो सर. नो. सो यू कैन नॉट स्टार्ट फ्रॉम द राइट हैंड साइड. अब लेफ्ट हैंड साइड से ही स्टार्ट करना पड़ेगा. देखो डेल जेड बाय डेल यू, हाँ, तो अभी ये मैं फाइंड कर सकता हूँ डेल जेड बाय डेल यू. वो मुझे टोटल डेरिवेटिव किस तरीके से करना है वो मुझे पता है. ठीक है, तो डेल जेड बाय डेल यू क्या आएगा, डेल जेड बाय डेल यू. चलिए डेल जेड बाय डेल यू कैसा आएगा, z इज अ फंक्शन ऑफ x एंड y, सो डेल जेड u किस में है, दोनों में है, x में भी है और y में भी है. सो डेल जेड बाय डेल x इनटू क्या आएगा डेल x बाय डेल यू प्लस डेल जेड बाय डेल y इनटू डेल y बाय डेल यू. समझ में आ रहा है सबको? यस और नो? Yes, sir. हाँ, अब डेल जेड बाय डेल एक्स तो मैं इसका कुछ नहीं कर सकता. ठीक है, अब डेल एक्स बाय डेल यू की वैल्यू फाइंड आउट कर सकता हूँ क्योंकि एक्स मुझे दिया गया, इट इज गिवन हियर ई रेज टू यू प्लस ई रेज टू में. अब विथ रिस्पेक्ट टू यू है तो ये पूरा इसका क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो गया तो जीरो हो जाएगा.
तो ये कितना आएगा, ई रेस टू यू का डेरिवेटिव होता है ई रेस टू यू, दिस वन एज इट इज डेल जेड बाई डेल वाई बाई डेल यू कितना होगा, इट इज माइनस ई रेस टू माइनस यू। तो ये मुझे क्या मिल गया, डेल जेड बाई डेल वाई मुझे सॉरी डेल जेड बाई डेल यू मिल गया मुझे। सिमिलरली आपको क्या फाइंड आउट करना है, डेल जेड बाई डेल वी, दोनों को अगर आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपको क्या मिलेगा, राइट हैंड साइड जो है वो ऑटोमेटिकली आपको मिल जाएगा। हो जाएगा अभी 2 मिनट के अंदर, यस और नो? चलिए ये कंप्लीट कीजिए। डेल जेड बाई डेल यू मैंने फाइंड किया है, आपको डेल जेड बाई डेल वी करना है, दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है एंड ट्राई चेक वेदर यू आर गेटिंग द रिक्वायर्ड राइट हैंड साइड और नॉट। हो गया? Yes, sir. Done. डन, वेरी गुड। चलिए अब दूसरा। फाइन डी यू बाई डी एक्स, क्या फाइंड करना है, डी यू बाई डी एक्स फाइंड करना है। तो पहले ये चेक कर लो, यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना है, डी यू बाई डी एक्स। फर्स्ट ऑफ ऑल ट्राई टू ड्रॉ द डायग्राम। u इज अ फंक्शन ऑफ, यस कितना फंक्शन है यहाँ पे, u इज अ फंक्शन ऑफ x y and z। u is a function of x y z, y is a function of x is a function of x, we can say that y is a function of x and z it is also a function of x। तो यहाँ पे 3 वेरिएबल, ठीक है, u it is a function of 3 वेरिएबल x y and z and all these 3 वेरिएबल are is a function of single वेरिएबल। ओके, तो du by dx, चलिए लिखा du by dx क्या होगा, यस Del u by del x upon into del 1. u by del x into dx by dx प्लस क्या होगा, del u by del y into dy by dx प्लस del u by del z into dz by dx। तो ये हो गया del u by del x। del u by del x कितना आएगा, e रेस टू वाई जेड, ये तो 1 हो गया, प्लस del u by del y कितना आएगा, x e रेस टू वाई जेड और dy by dx कितना आएगा, कितना आएगा, अब सिंपली डेरिवेटिव ही करना है विथ रिस्पेक्ट टू x। तो ये कितना आएगा, -2x अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ, यहाँ पे 2 आ जाएगा, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस डेल यू बाई डेल जेड आएगा x e रेस टू वाई जेड, जेड का डेरिवेटिव 1 और साइन क्यूब x का कितना आएगा 3 साइन स्क्वायर x और साइन स्क्वायर x का डेरिवेटिव cos स्क्वायर। तो बस इसी तरीके से आगे बढ़ना है आपको।
फाइनली कॉमन निकाल के आप जो कुछ भी एलसीएम लेके जितना भी कैंसिल आउट होता है उसी तरीके का, बट द कोर ऑफ दिस एग्जांपल और एंड कॉन्सेप्ट इज दिस, ये कोर है। अगर ये समझ में आ गया, ये दोनों चीजें समझ में आ गई, देन यू कैन टेकल एनी एग्जांपल ऑफ दिस। चलिए दूसरा एग्जांपल डिस्कस करते हैं। इफ u इज अ फंक्शन ऑफ x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स। अब चलो इसको नाम दे दो, इसको नाम दे देते हैं r, इसको नाम दे देते हैं s, और इसको नाम दे देते हैं t। ओके, सो नाउ डायग्राम ड्रॉ करते हैं। u इज अ फंक्शन ऑफ r, s एंड t। r is a function of, tell me, r is a function of x and y, s is a function of yz, and t is a function of z and x। तो ये डायग्राम ड्रॉ हो गया। अब मुझे प्रूव क्या करना है, व्हाट आई वांट टू प्रूव दैट del u by del x plus del u by del y plus del u by del z इक्वल्स टू 0, ये प्रूव करना है। तो पहले ये तीनों क्वांटिटी फाइंड आउट करनी पड़ेगी हमको। तो पहले फाइंड आउट करते हैं del u by del x। चलिए del u by del x, तो विथ रिस्पेक्ट टू x, तो x कहाँ पे है, एक यहाँ पे है और दूसरा कहाँ पे है, यहाँ पे है। ठीक है, तो यहाँ पे x वो r के साथ अटैच है, यहाँ पे x है t के साथ अटैच है, s के अंदर नहीं है x आपका। तो कैसे लिखोगे आप बताओ, del u by del r into del r into del r by del x। dr by dx नहीं आएगा? सर del r आएगा ना, क्योंकि दो दो हाँ, दो वेरिएबल है। हाँ, वेरी गुड। del r by del x प्लस s आएगा कि t आएगा? मैंने यहाँ पे राउंड करके रखा है पहले से, अब s में नहीं आएगा। हाँ, t आएगा। सो del u by del t इंटू del t by del x। ओके, तो चलिए del u by del r वो तो मैं फाइंड आउट कर नहीं सकता। del u by del r, del r by del x कितना आएगा? यहाँ पे आपका r क्या है, x माइनस वाई, s is y माइनस z एंड t is z माइनस x। तो चलिए del r by del x कितना आएगा, 1 प्लस del u by del t, del t by del x वो भी कितना आएगा, -1 आएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका del u by del r माइनस del u by del t, कॉल इट एज इक्वेशन नंबर 1। ये आपको मिला del u by del x। अब del u by del y फाइंड करते हैं। चले del u by del y, तो y कहाँ पे है, एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे है, तो r के साथ में और s के साथ में। तो यहाँ पे आएगा del u by del r इंटू del r by del y प्लस del u by del s इंटू del s by del y। सो del u by del r, del r by del y कितना होगा, del r by del y इट इज -1 प्लस del u by del s by del y आपका होगा 1। ओके, तो ये आपको मिल गया del u by del s minus del u by del r, call it as equation number 2। now similarly find out del u by del z। ઓકે, આ જ રીતે શું ફાઇન્ડ આઉટ કરશો, del u by del z, ત્રણેયનું એડિશન કરશો એટલે તમને આન્સર શું મળશે, 0 મળશે। ચલો ચેક કરો जी, આન્સર 0 મળે છે। એટલે in this particular kind of example what you have to do, you have to name this one as r s and t। r इस तरीके से आपको नाम दे देना है। ओके, यहाँ पे फंक्शन लिखा हुआ है, फंक्शन के अंदर ये सब सारा फंक्शन लिखे है। सो फर्स्ट कॉल इट एज r s and t एंड देन मेक द डायग्राम एंड देन राइट द टोटल डेरिवेटिव। जो कुछ भी क्वांटिटी फाइंड आउट आपको करनी है वो आपको फाइंड आउट करनी है। ठीक है, હવે એક એક્ઝામ્પલ તમને હોમવર્કમાં આપું છું, બરાબર? બીજું એક સારો એક્ઝામ્પલ છે, એના માટે ઇટ વિલ ટેક ટાઈમ, સો વી વિલ ડિસ્કસ ઇન ધ નેક્સ્ટ। पर एक एग्जांपल आपको हो गया, 0 हो जाता है। Yes, sir. Yes, sir. ओके ओके ओके, ये होमवर्क में कर दीजिएगा एग्जांपल। अगर समझ में नहीं आ रहा देन वी विल डिस्कस इट।
प्रूव दैट x, अब डेल फाई बाय डेल एक्स उसको मैं फाई ऑफ एक्स भी लिख सकता हूँ, ठीक है। तो अगर एग्जाम के अंदर कुछ और सिंबल में आ रहा है तो आपको पता चलना चाहिए क्या हो सकता है, व्हाट इज डेल फाई बाय डेल एक्स, उसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, उसका अनदर सिंबल क्या है, फाई एक्स, आ रीते लखूँ सफिक्स ने अंदर, so it denotes the partial derivative. Okay, z del phi by del z, this equals to u del phi by del u plus v del phi by del v plus w del phi by del w. Now tell me, इसको प्रूव करना है तो कैसे करोगे आप? वेर यहाँ पे लिख देता हूँ तो आपको कंफ्यूजन क्रिएट ना, क्योंकि यहाँ पे यू वी डब्ल्यू भी है और लेफ्ट हैंड साइड पे एक्स वाई जेड भी है, तो यहाँ पे मुझे मेंशन करना पड़ेगा वेर फाई इज अ फंक्शन ऑफ एक्स वाई एंड जेड। चलो अब बताओ मुझे क्या होगा, डायग्राम कैसे ड्रॉ करोगे? फाई इज अ फंक्शन ऑफ, यहाँ पे दे दिया है इट इज फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड, एक्स इज अ फंक्शन ऑफ, यहाँ पे ध्यान दीजिए एक्स इज अ फंक्शन ऑफ vw, y is a function of wu and z is a function of uv। अब मुझे बताओ कि लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करोगे या राइट हैंड साइड से? राइट हैंड साइड। यस Right एग्जैक्टली। side. हाँ 5x तो मुझे मिलेगा नहीं, तो सीधा मुझे कहाँ से स्टार्ट करना पड़ेगा, राइट हैंड साइड से मुझे स्टार्ट करना पड़ेगा, एंड यू विल गेट द रिक्वायर्ड लेफ्ट हैंड साइड। ओके, तो यहाँ तक रखते हैं, ठीक है। फॉर टूडेज लेक्चर वी विल स्टॉप हियर, बट ये एग्जाम में भी आई थिंक पूछा जाता है, ये एग्जाम्पल ये वाला बहुत बार पूछा गया है। So we will stop here. लिख लिया आप लोगों ने? Thank you, sir. ओके ओके, बाय टू एवरीवन।